I'll have to turn Matthew chapter 23. मत्ती चैप्टर 23 में जाएंगे। The main ministry of Jesus on this earth put axe in the root of the tree. प्रभु का सबसे बड़ा काम ये था कि हमेशा वो जो तलवार से एक पेड़ के जड़ को काटता था, Not cutting the branches. वो हमेशा ढाल को नहीं काटता था। If anyone who understood that, जो कि भी ये समझता था, he also deals with not with the sin but the root of the sin. वो भी अपने बाहर के पाप से नहीं, लेकिन जो पाप का जो जड़ है उससे उसको ठीक करने So दिखता है। I want to show you a root of the sin today. Is very important that we should understand. तो इसलिए मैं यहाँ पे आज जो पाप का जो जड़ होता है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। It's a well-known passage, Matthew chapter 23. ये बहुत ही It speaks about the Pharisees' hypocrisy. ये बहुत ही मशहूर भाग है बाइबल का, जहाँ पे फरीसियों का जो पाखंड का जो धोखेबाजी है वो बाहर आता है। Full chapter deals with one point, hypocrisy. ये पूरा जो चैप्टर में बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है, वो है पाखंड पर। The shocking verse is the verse 1. और सबसे पहला वचन हम लोग देखेंगे। Jesus spoke to the crowd and to his disciples. प्रभु यीशु ने अपने चेलों की ओर बात किया। Something is there regarding this for disciples. यहाँ पे चेलों के बारे में कुछ तो है। If he spoken to only the Pharisees, then I would understand. अगर वो सिर्फ फरीसियों की ओर बात करता तो मैं समझ सकता था। Then Jesus said these words, verse 3. वाक्य 3 में प्रभु ने कहा, Whatever they are sitting in the chair of Moses, whatever they tell you to do it. यहाँ पे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जो कोई भी फरीसिया बोलते हैं वो तुम करो, But don't do according to their deeds. लेकिन जो लोग करते हैं उसका पीछा मत करो। Why? क्यों? Because verse 5 says, but they do all their deeds to be noticed by men. क्योंकि वाक्य 5 कहता है कि वो लोग अपना हर एक अच्छा काम इस तरीके से करते हैं जो ताकि दूसरे लोग उन्हें देख पाए। And you read the whole chapter, you will find the root of the sin is the noticed by men, means they live the life for the opinion of people. तो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि जो वो पाप की जो जड़ है वो ये है कि वो लोग दूसरों के नजरों में अच्छा रहने के लिए वो लोग जीते हैं। For example, it's given they love to have the place of honor, and they love to have the respectful greetings in the meeting. जैसे लोग लिखे हैं कि वो लोग जहाँ कहीं भी जाए उनको आदर पाना बहुत अच्छा लगता है। See, nothing wrong. It's not a sin. If somebody gives you a respectful greeting or somebody gives a cheap seat. अगर ये पाप नहीं है, अगर कोई तुम्हें आके आदर दे तो उसमें कोई पाप नहीं होता, But when you love, लेकिन अगर तुम्हें वो आदर से प्रेम हो जाए it's a sin. How do I know that? तो वो पाप होता है। कैसे मुझे पता है? Because Jesus said in verse 13, you shut out the kingdom of heaven and you do not enter in yourself. और यहाँ पे प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम प्रभु के जो राज्य में जाने का जो रास्ता है उसे बंद कर देते हो और खुद भी तुम नहीं जाते हो। So by this now I know only one thing can prevent a person to enter the kingdom of God, that is sin. और ये वचन से मैं समझता हूँ कि जो एक ही चीज है जो एक व्यक्ति को प्रभु के राज्य में प्रवेश करने से रोक सकता है और वो है पाप। So I know all this mention is as a hypocrisy in this whole chapter. The root cause is the Pharisees, they live their whole life for the opinions of the people. तो ये चैप्टर हम लोग जो देखते हैं पाखंडपन का जो पाप है उसका जड़ क्या है? दूसरों के राय के लिए जीना। And I tell you, first of all, I prove you that is 100% wrong. The people opinion can be 100% wrong. और मैं यहाँ पे आज ये साबित करना चाहता हूँ कि लोगों का जो राय होता है तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से गलत हो सकता है। From the Bible. बाइबल में से It says about Jesus. Jesus asked his disciples in Luke chapter 9, verse 18. Jesus said, "Who am I? How the people calls me? Who am I?" तो यहाँ people think. तो यहाँ पे बाइबल में लूका के पुस्तक में प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? And the disciples said, some people say you are Jeremiah, Elijah, John the Baptist, and one of the prophets. And we all knew that is 100% wrong. और वहाँ पे चेलों उनको बोलते हैं कि लोग या तो आपको यिर्मयाह बोलते हैं या तो एलाइशा बोलते हैं या जो कोई ना कोई नबी के नाम से आपको बुलाते हैं और हम लोग सभी जानते हैं कि वो लोग सभी लोग गलत थे। That is the opinions of the people towards Jesus. तो वो सारी लोगों की राय थी प्रभु यीशु के बारे में। And I'll show you some other person is Apostle Paul. We read in Acts chapter 28. We all know well-known passage. He was in the Malta, the island called Malta. He went to just gather some bundle of sticks. और हम लोग आगे जाते हैं प्रेरितों के काम में अपोस्तल पौलुस क्या पढ़ते हैं माल्टा करके एक आइलैंड पे वो था, उस समय वहाँ पे लकड़ी इकट्ठा करने गया था। So there was a viper just biting him. तो वहाँ पे एक सांप था जिसने उसे डसा था। So the people immediately said, undoubtedly he is a murderer. तो उस समय तुरंत लोगों ने बोला कि हाँ ये व्यक्ति एक खूनी होगा। So after a few minutes, they saw nothing happened to Paul. They said he is a god. तो उस समय कुछ समय के बाद उसको इससे कुछ हुआ नहीं, तो फिर लोग बोलने लगे ये तो भगवान है। Imagine the people's opinion is 100% wrong. तो इससे हम देखते हैं कि लोगों का जो राय होता है वो कितना गलत हो सकता है। By the mouth of two witnesses, everything is confirmed. बाइबल में लिखा है कि दो लोगों के गवाही से कोई भी चीज को हम लोग सिद्ध साबित कर सकते हैं। So these two examples is the best example to teach us
people's opinion can be 100% wrong. तो ये तो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि लोगों के राय तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से गलत हो सकते हैं। Second thing, I tell you something. दूसरी चीज़ है What मैं will बोलना be the चाहूँगा danger if I keep believe by the people's opinion? कि क्या ऐसा खतरा है अगर मैं लोगों के राय के हिसाब से जीता रहूंगा तो। I tell you the danger. मैं बताऊंगा क्या खतरा है। We read in Mark chapter 6. मार्कस चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ते हैं Herod. हेरोद के बारे में। You know, when Herodias' daughter asked about John the Baptist's head, Herod was sorry. तो उस समय जो हेरोद की जो पत्नी की जो बेटी थी उसने उस समय उसको बोला था कि मुझे जॉन द बैप्टिस्ट का सर चाहिए, तो उस समय हेरोद अपने मन में एकदम दुखी हो गया था। But he ordered to cut the John the Baptist's head because of the people who were sitting in front of him. लेकिन उसके बावजूद उसने अपने सिपाहियों को बोल दिया कि जॉन द बैप्टिस्ट का सर काट दो, क्योंकि वो डर रहा था कि उसके आजू-बाजू के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। What is the spiritual application on that? तो इससे हम लोग क्या आत्मिक तौर पे क्या लागू कर John सकते the हैं? Baptist is a conscience of Herod. जॉन द बैप्टिस्ट एक उदाहरण है हेरोद का अंदर के मन के बारे में। Today, if we keep living by the people's opinion, and the conscience says many things, one day the day will come, we will kill our conscience. तो अगर हम लोग आज भी अपने जीवन में हमारे मन के हिसाब से नहीं लेकिन लोगों के राय के हिसाब से जिएंगे तो हम लोग काफी कुछ खो बैठेंगे And प्रभु के same साथ। thing happened in Mark chapter 15 for Pilate also. Pilate, he knows very well Jesus was a godly man, but he was looking on the people's slave for the people's opinion. He said, kill Jesus. पायलट के साथ भी यही हुआ था, वो जानता था कि प्रभु यीशु एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु को मारने का ऑर्डर दे दिया। And see the danger, you can go to such an extreme if you live by the people's opinion. तो अगर हम लोग लोगों के राय के हिसाब से जिएंगे तो हम लोग इतना पाप में भी पड़ सकते हैं। You know, that is the reason they ended up whitewashed tomb. इसलिए प्रभु यीशु फरीसियों को एक सफेद पेंट दिया हुआ गुफा बोलते थे। See, in the sense, it says the verse in the same chapter, this outside is so beautiful, but inside is dead bones. उसका मतलब क्या है कि बाहर से वो बहुत ही सुंदर दिखता है लेकिन अंदर सब हड्डियां पड़े हैं। But I'll tell you something in the contrast. Take an example of honeycomb. लेकिन उसके अंतर में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। उदाहरण लो शहद के बारे में। The honeycomb outside is not so impressive, तो जो शहद जिसके अंदर बनता है बाहर से वो एकदम अच्छा नहीं दिखता, but inside is full of honey. लेकिन अंदर उसके शहद होता है। And that is the life of Jesus. और वो है प्रभु यीशु का जीवन, पूरा अंदर शहद है। We read about Jesus when he was hanging on the cross, there was no beauty in him. हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में कि जब वो क्रूस पे लटका था उसके और उसमें कोई भी सुंदरता नहीं थी उस समय, But he was full of honey. लेकिन उसके अंदर शहद था। I prayed so many times, Lord, make my life in such a way that outward, not like so beautiful like a tomb, but inward like a honeycomb. तो ये प्रार्थना मैंने भी कई बार की है कि भले बाहर से मैं एकदम सुंदर नहीं दिखूं लेकिन अंदर मेरे अंदर प्रभु यीशु का शहद का जीवन होना But चाहिए। the root cause of this sin is that live by people's opinion. तो ये पाप का जड़ क्या है कि हम लोग दूसरों के राय के हिसाब से जीते हैं। See, even I tell you something, the level of Jesus. Even when John the Baptist was the godliest man who lived in Jesus' time, and he sent a message to Jesus, says, "Are you the Messiah, or shall we wait for someone else?" प्रभु यीशु के समय में सबसे धार्मिक मनुष्य जॉन द बैप्टिस्ट था, लेकिन इसके बावजूद उसने एक समय एक सूचना प्रभु को भेजी थी कि प्रभु आप ही होना वो जो आने वाले थे कि हम लोग किसी और का राह देखें। But Jesus was free from even John the Baptist. लेकिन प्रभु यीशु जॉन द बैप्टिस्ट के राय के बारे में परवाह नहीं कर रहे थे। And Jesus, listen, he never offended or he never thought bad about John the Baptist, but instead of that, he said, Lord, he said to them, born by woman, John the Baptist is the greatest. तो उस समय प्रभु यीशु को थोड़ा भी बुरा नहीं लगा जॉन द बैप्टिस्ट की ये खबर सुन के, लेकिन उन्होंने बोला लोगों को वहाँ पे जो खड़े थे कि आज तक जितने भी लोगों ने जन्मा है उनमें सबसे महान जॉन द बैप्टिस्ट है। And when we really free from people's opinion, even some elders or somebody else in our church also says something bad about us or think bad about us, we least bother about that. तो अगर हम लोग दूसरों के राय से दूसरों के राय के हिसाब से जीने से मुक्ति पा चुके हैं, भले वो कलीसिया के लोग हो या बाहर के, तो हम लोग शांति का जीवन पाएंगे। And finally, I tell you something. Why Jesus addressed the disciples? और फिर मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि क्यों प्रभु यीशु ने ये समाचार अपने चेलों को दी। Because we read in Galatians chapter 2. क्योंकि गलातिया चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ते See, हैं Apostle Peter was filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost, was doing such a fantastic ministry. अपोस्तल पतरस पवित्र आत्मा से भर चुका था पेंटेकोस्ट के दिन, जिसके द्वारा वो इतना अच्छा सेवा कर पाया था। We read one thing about Peter, a great mistake. लेकिन अपोस्तल पतरस के बारे में एक चीज पढ़ते हैं जो बहुत ही एक चूक की बात है। Paul's writing to the Galatians, he says, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि अपोस्तल पौल गलातियों को लिख रहा है, verse 11, when
Cephas came to Antioch, I opposed him to face, because he stood condemned the prayer coming to certain men from James, means the Jews. He used to eat with the Gentiles, but when they came, he began to withdraw and hold himself aloof, fearing the party of the circumcision. तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब भी अपोस्तल पौल आया था पतरस को मिलने के लिए, तो उसने ये देखा था कि अपोस्तल पतरस जब तक दूसरे यहूदी नहीं आए थे, जो अयहूदी थे, उनके साथ वो भोजन कर रहा था। लेकिन जैसे कुछ यहूदी आ गए थे, उसने उनका संगति छोड़ दिया और दूर चला गया, क्योंकि वो डर रहा था कि ये दूसरे यहूदी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। There is no partiality in the eyes of God. When Pharisees did, Jesus called hypocrisy. When Peter did, even after the day of the Pentecost, God, in the Holy Spirit says in the Bible, hypocrisy. तो प्रभु के पास कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु के समय में जब भी फरीसी लोग ऐसा करते थे, तो प्रभु उनको बोलता है कि तुम पागलपन कर रहे हो, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा पतरस को भी डांटता है कि तुम भी पागलपन कर रहे हो। Now I understood why Jesus addressed the disciples. और अभी मुझे समझा कि क्यों प्रभु ने ये चीज चेलों को बोला था। Even we say I am really filled with the Holy Spirit. True. Apostle Peter also filled with the Holy Spirit. तो ये सच बात हो सकती है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। पतरस भी इस समय पवित्र आत्मा से भरा था। But if we are not careful about the root of the sin, लेकिन अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे ये पाप की जड़ के बारे में, we can really end up with the hypocrite. तो हम लोग भी ये पागलपन में पड़ सकते हैं। Really have, see, it is not that I am preaching that I am 100% free from people's opinion. तो यहाँ पे मैं जब प्रचार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरीके से मुक्त हो चुका हूँ ये चीज से। Like Brother Zach says, my onion size is becoming less. जैसे ब्रदर जैक बोलते हैं कि जो मेरा जो कांदे का जो साइज है वो छोटा हो रहा है। But I tell you something, when I judge myself every day, I see the size of the onion is like a cabbage size regarding the people's opinion. तो जब मैं अपने मसीह जीवन मैंने शुरुआत किया था, उस समय ये जो कांदे का जो साइज था वो एक गोभी के साइज का था। But I tell you something, how do I get rid of this? लेकिन मैं बोलता हूँ कि कैसे मैंने इससे मुक्ति पाया। Be honest, like brother shared a message. It's like a honest. जैसे भाई ने बोला, हमेशा प्रभु के सामने सच्चे रहो। Before the people and before the God. प्रभु लोगों के सामने और प्रभु के सामने। And second thing, when the Holy Spirit tells you, और दूसरी बात जब पवित्र आत्मा तुमको बोलती है, many times the Holy Spirit told my heart, you pray this prayer for the people's, just to get reward from people's opinion, what they think. तो पवित्र आत्मा ने कई बार मुझे बोले कि तुम ये प्रार्थना बोलो ताकि तुम लोगों के राय से मुक्ति पा सको। I said, Lord, it's true, Lord. और उसमें मैं बोलता हूँ कि हाँ प्रभु ये सच है। And when Holy Spirit says, you spoke this to so and so person to impress them. तो उस समय कभी-कभी पवित्र आत्मा मुझको बोलता है कि तुमने ये चीज बोली है जस्ट ताकि तुम एक दूसरे व्यक्ति को खुश कर पाओ। I said, yes, Lord. तो उस समय मैं बोलता हूँ कि हाँ प्रभु ये मैंने किया। And God, the Holy Spirit works in my heart to free from all the people's opinions. तो फिर पवित्र आत्मा मेरे मन में कार्य करता है ताकि मैं लोगों के राय से मुक्ति पा सकूं। And let us really take this root of this sin serious. तो इसलिए हमें ये जो पाप की जो जड़ है इसे गंभीरता से लेना है And get rid of completely. और पूरी तरीके से उसे छुटकारा पाना है।